देख रही हूँ। हाँ, ओके, रिकॉर्डिंग। Come on, join your hands and close your eyes, beta. Hi Ram. So our chapter was मेरा मैम in the earliest cities. Okay. Chalo, let's start discussing question and answers. Come on. Now, the first question is related to. Is there any doubt or it is all clear? Have you understood the chapter? No. Ma'am? Yes, ma'am. Okay. Fine. Now, first question is, how do archaeologists know that cloth was used in the Harappan civilization? Now, we know that archaeologists used to tell anything about their findings when they get something. So, that findings or the when they used to say something, when they used to write something, all are based on what? Proof. Proof. Yes, evidences. Evidence. How do मैम आपकी archaeologists? स्क्रीन दिख रही Yes, स्क्रीन नहीं दिख रही। Mahesh, मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन नहीं दिखती, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर भी नहीं रही बेटा। आई एम नॉट प्रेजेंटिंग स्क्रीन। ओके, आज स्क्रीन प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ मैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चला कि क्लॉथ यूज होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में? व्हाट डिड दे फाइंड? मैम they find proof like they found stitches of clothes, tools from which it could make cloth. एनीथिंग एल्स? एनीबॉडी एल्स? तन्मय, Ma'am, please repeat question. how do archaeologists came to know that cloth was used in Harappan civilization? What did they get? मैम उन्हें कुछ जब वो उनकी डेड हो गई होगी वहां पर, तो उन्हें कुछ क्लॉथ्स के टुकड़े मिले होंगे जिनसे वो इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे कपड़े वो पहले पहनते थे या फिर ऐसे कपड़े उनके थे। मैम मैं बताऊं? मैम जानवी। मैं बताऊं वेदांश? ओके वेदांश, वेदांश आफ्टर वेदांश जानवी। यस मैम। मैम उन्होंने उनके वो मैम लेवल्स देखे कि एक मैम एक अपर लेवल था और एक लोअर लेवल था। तो उससे वो पहचान सकते थे कि जो लोग ज्यादा मतलब थोड़े से रिच होते थे वो अपर लेवल में रहते थे और जो नॉर्मल कॉमन पीपल होते थे वो लोअर लेवल में रहते थे। जानवी, Ma'am, because they found cloths attached to silverwares. okay, very good. Archaeologists have मैम found ऐसा भी होता था मैम away, यहाँ पे। okay, a silver vase। ठीक है, इसको अगर याद हो तो आप देख सकते हो। इफ यू आर हैविंग योर बुक विद यू ऑन पेज नंबर 36, हैव यू गॉन थ्रू द चैप्टर? See, cotton was probably grown at Mehergarh about 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro. ये जो था, they got the vase on the lid of that they got the cloth material. जब उसको टेस्ट किया उन्होंने, they found that this is cloth which was used in that era, in that time, in that period. So I told you that on the basis of the evidences only they used to tell something. So because they got all the things, they were sure that it was used in the Harappan civilization by the people, because they have got spindle balls also. ठीक है, इसमें आप आगे भी ऐड कर सकते हो कि they have got
स्पिंडल बर्स, वो जो तकली होती है, नील जैसा होता है जिसपे थ्रेड बनाया जाता है, दे हैव गॉट दैट मटेरियल आल्सो, दैट टूल आल्सो, सो दैट दे केम टू नो दैट थ्रेड वाज वोवन देयर, और उस थ्रेड से वो क्लॉथ बनाते थे, एंड क्लॉथ वाज यूज्ड इन दैट सिविलाइजेशन। मैम उन्होंने स्टैम्प्स भी देखी थी, सील्स। बट हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्लॉथ वो यूज करते थे, ये कैसे पता चला? ठीक है जानवी, गुड, आज आप बोले तो कम से कम, ठीक है। गॉट दिस? हैव यू गॉट इट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. This question is clear to all, everybody? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now match the column. Copper. Yes. Copper was used in Rajasthan. Rajasthan. Gold. कोलकाता, Karnataka. अफगानिस्तान, ईरान। Gold. Karnataka. कर्नाटका। Okay. Precious stones. गुजरात, Gujarat. Yeah, that day we discussed about that, no? In Lothal and in Dholavira. Precious stones were used for making. हम जो वो स्टोन्स मंगाते थे वो चाइना से ही मंगाते थे। Yes, and tin. Last one. Afghanistan. Ma'am, Afghanistan. Afghanistan. हाँ. Now the next question. Be very careful. Afghanistan. Okay. Based on epistemic learning, you have to think and speak. Why were metals, writing, and the wheel and the plough important for the Harappans? Now be very careful. Let us discuss why were metals important for the Harappans. First one, metals, uses of metals. Metals, Metal used for making tools, ornaments, vessels, weapons. I'm not able to scroll down in the. मैम उसके Yes. Who was saying answer? Pravanchika. हाँ, कौन बोल रहा था बेटा? Pravanchika. Okay, Pravanshika, again. Metals used for making tools, ornament, vessels, weapons. Yes, very good. Metals were used by the Harappans for making tools, weapons, vessels, etc. And for ornaments also. Gold and silver were basically used by them for making ornaments. ठीक है, तो चार चीजें हमने देखी, टूल्स, weapons, vessels and ornaments. Tools, weapons, vessels and ornaments. मैं स्टॉप मानो, मेरा तो ये ऑन है। मैम आपकी वॉइस आ रही है। Yes, ma'am. आ रही है। मैम आ रही है। मैम शायद उसका वो म्यूट हो गया है। हाँ देखो, आवाज सभी को आ रही है, सिर्फ मानव को नहीं आ रही, आई थिंक। मैम शायद उसका स्पीकर म्यूट हो गया है। Yes, ma'am. देखो, वो अंदर से भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, सिस्टम में भी कई बार आप दिखते तो हो कि हाँ सुनाई दे रहा है, पर अपने आप ही म्यूट हो जाता है, वो ऑन भी नहीं होता, ऑफ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता उसके साथ में। मैम उसके घर में भी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। नेटवर्क प्रॉब्लम आजकल हो ही रही है बेटा, एवरीवेयर इन द स्कूल आल्सो वी आर फेसिंग सच प्रॉब्लम। मैम मैं तो जिससे भी कर रहा था सोशल साइंस में पता नहीं कितनी बार हुई है। चलो, इज इट क्लियर व्हाई मेटल्स आर यूजफुल, व्हाई दे वर यूजफुल फॉर हड़प्पन्स? वही पेंसिल से लिख लिया करो कि मेटल्स क्यों यूजफुल थे, क्यों इंपॉर्टेंट थे। ओके, नाउ कमिंग टू द राइटिंग, व्हाई वर राइटिंग, राइटिंग मतलब लिखना नहीं, स्क्रिप्ट जो थी,
जो राइटिंग्स थी, कुछ इंस्क्रिप्शंस थे या मैन्युस्क्रिप्ट्स देखो, इस तरीके की जो चीजें थी वहां पे जो मिली हैं, वो कैसे यूजफुल थी हड़प्पन के लिए? For communication purpose, फॉर कम्युनिकेशन पर्पज, व्हाट एल्स? मैम फॉर मैम मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो सामान लेके जा रहा है उस पे मैम वो जो सील रहती थी जिसपे कोई कुछ लिखा रहता था वो उस पे लगा देते थे ताकि पता चले कि ये चीज इधर से आ रही है। यस, गुड। और कुछ यूज था? राइटिंग क्यों की जाती थी, एक्चुअली क्यों की जाती थी? मैम ताकि मैम अब जो उनके किंग्स एंड क्वीन थे उनके कॉन्कर कहाँ हुए वो उनकी वो दिखाने के लिए कि वो मैम उनकी हिस्ट्री देखने के लिए। यस, हु एल्स? और कौन बोल रहा था? मैम उनको अपने बारे में लिखने के लिए, मतलब मैम फ्यूचर में कोई और उनके बारे में पढ़ेगा। उनको अपने बारे में लिखने के लिए। और मैम वो किंग्स लिखते थे कि हमने युद्ध जीता, हारा और कैसा हमारा जीवन गया, ताकि मैम फ्यूचर के जो लोग हैं वो उसे पढ़कर समझ सके। मैम कविता और कहानी लिखने के लिए। फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, फॉर मेकिंग सील्स, फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, so that in future people may use these records for something, for writing their history, for writing something else. Okay. और they could मैम अपने हैंडराइटिंग सुधारने के लिए। मैम 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 पोयम और स्टोरी लिखने के लिए। हाँ, poem and story for writing their मैम हैंडराइटिंग सुधारने के लिए। हैंडराइटिंग सुधारने के लिए। Okay. जब भी हम राइटिंग करते हैं हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जिससे कि हम आगे रेफर कर सके और रेफरेंस पर्पज। ठीक है, आज आप ये हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो दिस इज योर रेफरेंस बुक, आप इससे रेफर करके ही बोल रहे हो, आपने कोई खोज नहीं की, बट यू हैव दिस बुक एज अ रिकॉर्ड टू रेफर दिस बुक। आपको पढ़ने के लिए काम में आए, आप इससे रेफर कर सको और सोच सको, इसलिए ये आपके पास एक रिटन एविडेंस है। अगर लिखना नहीं आता तो आपको ये नहीं पता होता। तो जब भी राइटिंग कहीं पे होती है दैट इज यूजफुल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड। और क्योंकि हड़प्पन सील्स पे लिखते थे स्क्रिप्ट अपनी, सो दैट वाज यूजफुल फॉर देम टू मेकिंग सील्स आल्सो, फॉर राइटिंग ऑन द सील्स। मैम तन्मय? मैम मैं एक एग्जांपल दूं क्या? यस। मैम जैसे हम लोग अभी एग्जाम जब नहीं होती हम लोग कॉपी पे लिख के रखते हैं क्वेश्चन आंसर, जो तब वो एग्जाम में यूज होते हैं। वेरी गुड, है ना। अगर आपको अभी जैसे हमने ये चैप्टर पढ़ा है दी अर्लियर सिटीज, ये बहुत फ्रेश है और हम सभी को याद भी होगा, लेकिन जैसे ही आप 4-5 चैप्टर्स आगे पढ़ जाओगे ना तो आपको ये धीरे धीरे भूल जाएगा क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। तो यहाँ से आप मेमोराइज करोगे तो नहीं याद आएगा। जब आप इसको लिखा हुआ देखोगे ना तो आपको क्लिक करेगा कि यस आई हैव डन दिस, इसमें ये बताया गया था। तो इसलिए रिटन रिकॉर्ड्स बहुत हम इसलिए बोलते हैं कि लिख के कोई चीज याद करनी चाहिए। याद करो, वो आपका बिल्कुल यहाँ पे प्रिंट हो जाता है और लिखने से हमें समझ में आता है कि वेयर वी आर राइट, वेयर वी आर रॉन्ग, व्हाट वी हैव डन रॉन्ग, व्हाट वी हैव डन राइट। यू कैन, मैम उससे हैंडराइटिंग और हाँ, स्पेलिंग भी सुधरती है। आपकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, आपको अगर याद मैम पढ़ने का मूड नहीं है तो अपने फ्रेंड सर्कल में बैठकर उनको पढ़ा दो, बस पढ़ाने मैम मैम वो अपने ऑब्जेक्टिव्स भी लिखते होंगे कि जैसे हंटर्स होंगे तो फिर वो उनको कहाँ कहाँ जाना है ताकि वो यहाँ पे हंट कर सके। हाँ, रिकॉर्ड मैम पहले के जमाने में सबसे ज्यादा प्लान कर सकते थे, प्लानिंग लिखते होंगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन करते होंगे। उन्होंने क्या किया, दे ऑल वर मेंटेनिंग रिकॉर्ड लाइक रूलर्स, व्हाट they were writing their own things. There were scribes and they used to note down all the things to use these references for further use. ठीक है, तो राइटिंग हमें पता चल गया, एक सील बनाने के लिए, अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, अपने
किसी भी चीज को आगे यूज करने के लिए, फॉर फर्दर रेफरेंस। ओके, नाउ कमिंग टू, ठीक है, दो क्लियर हो गए हमारा, मेटल्स क्यों यूज करते थे और राइटिंग क्यों करते थे। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज द व्हील। व्हाट वाज द यूज ऑफ व्हील फॉर द हड़प्पन? मैम कार्ट में लगाने के लिए। ओके, फॉर फिक्सिंग इट इनटू कार्ट। ओके फाइन, अनदर पॉइंट, एनी अदर? मैम जो भी कुछ वुड का कुछ ले लेते होंगे, उसे फ्लैट बना के उसके नीचे व्हील लगा देते होंगे, उस पर भारी सामान रख के ले जा सकते होंगे, जो भारी होता होगा। For carrying heavy loads, they use wheels. Okay. Next, any other point? Yes, Vedansh. मैम अगर उनको बहुत सारा सामान ले जाना होगा तो फिर वो, अगर उनके पास एक प्लैंक अलग से होगा, स्लैब जैसा प्लैंक, तो फिर वो बस दो व्हील्स के ऊपर रख के आराम से जल्दी भी जा सकते हैं। मैम फॉर मेकिंग हैंड कार्ड्स। हाँ, for making cards, hand cards. Okay. मैम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान ले जाने के लिए। Yes. Ma'am, they can make stroller things in which they can put their food, vegetable or etc. Okay, good. Pranjal, can you add some more points? Pranjal? Yes, ma'am. Add one more point. What was the use of wheel for Harappan people? पहिए का क्या यूज था? मैम मैम जैसे वाटर निकालने के लिए, मैम इन वेल से। ओके, वाटर निकालने के लिए एज अ पुली। ओके फाइन, वेरी गुड। मैम वो कुछ कुछ मूवीज में होता है ना कि वेजिटेबल्स काटने के लिए या फिर उसके लिए वो एक व्हील रखते हैं और उसमें ना एक अलग से बार लगा के उसको घुमाते हैं, तो फिर और उसी सामने वेजिटेबल्स रखते हैं और जो व्हील के जो कॉर्नर्स है उनको तो शार्प करके उससे वो कट जाती हैं सब्जियां, बस घुमा घुमा के ऐसे। मैम ऐसे ही करके मैम जो वो धान होती है मैम, वो वैसे ही उसको फ्रेश ऐसे ही किया जाता है। मैम गाय का खाना काटने One for pottery and for making cart used for traveling. मैम प्रवंशिका की आवाज सही से नहीं आ रही। जैसी आ रही है। ओके, फॉर मेकिंग, उसने बोला कि फॉर मेकिंग, फॉर गोइंग टू सम अदर प्लेस, प्रवंशिका, फॉर मेकिंग टूल्स और कार्ड्स, व्हाट? One for pottery and for making cart used for traveling. Okay, for making cards used for traveling, to travel. मैम Okay. प्रवंशिका की आवाज देखो ही। Aksha, come on. Yes, very good. Aksha, again, beta. मैम प्रवंशिका की आवाज ब्रेक हो रही है। किसके लिए? मैम ब्रेक प्रवंशिका की आवाज नहीं आ रही। मैम ग्रिड जैसे आ रही है। मैम वो कह रही है कि उसकी आवाज सही से नहीं आ रही प्रवंशिका की। ओके, प्रवंशिका ने बोला कि कार्ड्स बनाने के लिए, जो कि उनको ट्रैवल करने के लिए यूजफुल होते थे। ठीक है अक्षा, फॉर ट्रैवल। मैम वो ट्रैवल एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कर लेते थे पैदल चल के। पैदल चल के नहीं, कार से। हाँ, पैदल जब कुछ भी नहीं था तो पीपल यूज टू मूव विद द हेल्प ऑफ देयर मींस कार्ट्स एंड ऑल, और जब कुछ भी नहीं था तो दे यूज टू मूव ऑन फुट, दे ट्रैवल बाय फुट ओनली, ऑन फुट ओनली। ओके, जब हम देखते हैं ना, अगर हम इस तरीके से पीछे जाकर देखें तो आप देखते होंगे कि पुराने लोग तीर्थ यात्रा करते थे। तीर्थ यात्रा, यू नो, गोइंग टू पिलग्रिम्स एंड ऑल। मैम हड़प्पन के उस टाइम तक अर्ली मैन ने कौन कौन से एनिमल्स को टेम करना, मतलब पता लगा लिया था कि हाँ ये एनिमल्स टेम हो सकते हैं और ये नहीं हो सकते। कितने एनिमल्स ऐसे पता लगा लेते कि टेम हो सकते हैं? बेटा
ऐसे काउंटिंग तो हम नहीं देख सकते, लेकिन शीप, गोट, मैम बफेलो और ये सब पिग, इवन पिग, हॉर्स, डोंकी, ये सारे उनको पता थे। मैम वो डोंकी के ऊपर बैठ भी सकते थे तो अब ट्रैवल करने के लिए। हाँ बिल्कुल, तो ये ऑक्स वगैरह को वो इसीलिए यूज करते थे। दे केम टू नो अबाउट दिस कि इससे काम मैम फास्ट होता है मैम बाय उनको ऑब्जर्विंग देम। उनका व्यवहार देख के समझ जिनको जाते वो हैं टेम वो। नहीं कर पाए, जिनको जैसे लाइक अगर हिरन को बोला जाए कि टेमिंग कर लेते तो उस पर यूज कर सकते, नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो उनके साथ में नहीं रह पाते, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, जो ऑब्जर्व किया, अकॉर्डिंग टू दैट दे रिएक्टेड। शीप और गोट को उन्होंने देखा कि वो उनके घर के आसपास ही आके बैठ जाते हैं और कहीं नहीं जाते, जबकि डियर्स के साथ ऐसा नहीं था, जबकि जीब्रास के साथ ऐसा नहीं था, जबकि और जो दूसरे एनिमल्स जो कि ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स नहीं है पर वाइल्ड एनिमल्स है, उनको वो टेम नहीं कर पाए क्योंकि वो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। मैम ये शीप और इन सब एनिमल्स ने मतलब अपने खाने का साधन ह्यूमंस को बना लिया होगा, और कुछ कुछ एनिमल्स थे जो खुद पे निर्भर थे कि हाँ हम ही खाना ढूंढ के खाएंगे। हाँ, तो इस मैम तरीके से मैम ये हम तो मैं सिर्फ जैसे इसको टाइगर देखा। वगैरह आदमी जो तन्मय, मैम हमने चैप्टर एक चैप्टर में पढ़ा था, जैसे जैसे अर्थ में ग्रासलैंड बनते गए थे वैसे वैसे जो एनिमल ग्रास पे सरवाइव करते थे वो ज्यादा इंक्रीज होते गए। पैस्चरलैंड्स क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जब डेवलप हो गए, ग्रासलैंड्स जब बन गए, तो ग्रास पर डिपेंड करने वाले एनिमल्स आने लगे। लेकिन जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं और महेश का क्वेश्चन है कि किस तरीके से उनको पता चला कि और किन किन एनिमल्स को उन्होंने टेम किया या डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। तो डोमेस्टिकेशन अगर हम मान के चले, क्योंकि ऐसा कुछ कहीं पे लिखा नहीं है कि उन्होंने डियर को पाला या उन्होंने जीब्रास को पाला या उन्होंने नीलगाय को पाला, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है ना, या मंकीज को पाला, कहीं पे भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन आप बराबर देखोगे फ्रॉम बिगिनिंग इटसेल्फ यू विल फाइंड दैट पीपल रियर्ड गोट, शीप एंड कैटल्स, गोट, शीप, कैटल्स, है ना। धीरे धीरे यस हॉर्सेस, मैम। डॉग्स को भी देखा हमने, क्योंकि जो एनिमल्स उनके आसपास रहते थे उन्हीं पर वो कंट्रोल कर पाए, जो उनकी सराउंडिंग्स में रहते थे, जो उनके सेटलमेंट्स के आसपास उनको बराबर दिखते थे, और जिन जो उनके जाने से डरते नहीं थे कई बार, और ग्रुप में रहकर वहीं पे अपने आप की सेफ्टी करते थे, अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते थे, ये इन्होंने टाइम के साथ में ऑब्जर्व किया। When they observed such things, they started taming these animals, they started rearing these animals, they started domesticating such animals. क्योंकि उनको पता था ये रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट मतलब क्या, पास जाने से दूर नहीं भागते, मारते नहीं है, ठीक है। तो जब पूरे ग्रुप में एक दो ऐसा होगा तो एक दो का नेचर तो अलग हो सकता है ना। हमने देखा है कुछ एनिमल्स हमको, जैसे गाय भी है, कुछ सींग से मारने दौड़ती है, कुछ नहीं दौड़ती है। कुछ डॉग्स हमारे पास आते हैं, बड़े आराम से आ जाते हैं, या हम उनके पास से चले जाते हैं, कुछ के पास जाने से ही घबराते हैं क्योंकि वो भौंकना मैम शुरू कुछ कर काट देते लेते हैं। हैं। हाँ, तो इसलिए हम भी ऑब्जर्व करते हैं। तो अब अर्ली मैन ऑब्जर्व्ड ऑल सच थिंग्स, क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन यस पावर मैम। जो है बहुत स्ट्रांग है। लाइक यू पीपल ऑब्जर्व योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, योर कलीग्स और योर फ्रेंड्स, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स के घर में जाते हो ना, तो आप अपने फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हो, उनके घर में क्या चीज कैसे रखी है, कहाँ क्या है, एंड देन यू डिमांड द सेम इन योर होम। ये ऑब्जर्वेशन है। आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, वी आर ऑब्जर्विंग। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये ह्यूमन बीइंग का एक बोला जाए कि पॉजिटिव चीज है, जो कि ऑब्जर्व करके वो सीख पाता है। ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ चीजें उसको समझ में आ जाती हैं। आप मैथ्स में कुछ टीचर पढ़ाता है तो ऑब्जर्व करते हो, एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हो। मम्मा कुछ बनाती है, यू ऑब्जर्व ऑल दोस थिंग्स, यू एक्सपीरियंस दोस थिंग्स, और जब कभी मौका लगता है तो आप ट्रायल भी करते हो। तो ऑब्जर्वेशन हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है। आपको नहीं पता चलता कि आपने ऑब्जर्व भी किया है। कई बार आप नोइंगली करते हो, कई बार अननोइंगली करते हो। अननोइंगली में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके रोल मॉडल होते हैं। मैम ऐसे जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लोग, उनको आप में भी कभी नोइंगली कुछ लोग उनको अपने अंदर ले लेते हैं और कुछ अननोइंगली लेते हैं।
मतलब आपका चलना, उठना, बैठना, उनको कॉपी करने लगते हैं आप धीरे धीरे, और आपको नहीं पता होता कि आप कॉपी कर रहे हैं, आपको पता नहीं रहता है, लेकिन आप उसको कॉपी कर रहे होते हैं जो आपको अच्छा लग रहा होता है, बिकॉज यू आर ऑब्जर्विंग देम कीनली। आप उनका ऑब्जर्वेशन बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, ध्यान से करते हो, तो आप इस तरीके से चेंजेस अपने अंदर लेकर आते हो। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन ही अर्ली मैन के साथ में यही था कि वो ऑब्जर्व, मैम देवे के माइक से आवाज आ रही है। हाँ, जब माइक ऑन हो रहा है तब, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, माइक अभी ऑन हुआ था वो कोई बात नहीं नहीं आ रहा। बेटा, स्पेस बटन में भी कई बार हम फिक्स कर देते हैं सेटिंग, अगर स्पेस बटन की होगी तो स्पेस बटन दबने से ही हो जाएगा, जो भी है। यस मैम हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज द प्लाव। मैम प्लाव, यस, मैम जैसे कोई न्यू डॉग लाता है पेट एनिमल और घर पे पाल रखता है, और जब हम उसके घर जाते हैं फिर हमें वो भौंकने लगता है, फिर धीरे धीरे वो हमें भी ऑब्जर्व कर लेता है, फिर नहीं भौंकता वो। हाँ, पहचानने लगता है, फिर आपको कैसे भी नहीं भौंकेगा, आपके पास आएगा, चुप रहेगा, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप गए होगे वही सेम उसकी आंखें। मैम हमारे यहाँ पे भी एक डॉग आया था पहले मैम, वो 22 डेज का था, तो फिर मैम वो बीमार पड़ गया था, तो मैम उसको वापस भेजना पड़ा था, तो मैम वो 2 दिन में हमें पहचान गया था, तो मैम वो जैसे ही वापस आया था 3 महीने के बाद, तो मैम वो किसी पे भौंका नहीं। हम्म, हम जैसे इधर की एक डॉगी थी, वो हमने पापा छोड़ के चले गए, हम उनको दूध पिलाते हैं। फिर वो हमें पहचान लिया। मैम पहले से दूध पिलाती है। मैम मेरे दादाजी के घर पे वो एक डॉग था, जर्मन शेफर्ड। तो मैम वो जब भी ना हम लोग जाते थे वहां पे, तो वो जैसे ही गेट खुलता था तो वो भौंकने लगता था, फिर जैसे ही किसी एक का भी चेहरा देख लिया तो वो शांत हो जाता था। डॉग तो बहुत जल्दी पहचान जाते हैं, ठीक है। मैम वो डॉग पता है वो जल्दी पहचान लेते सबको। नाउ टेल मी द प्लाव। मैम उनकी सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत तेज होती है। वेलिंगटन, यस, मानव। हम खेत जोतने के लिए। Yes, very good. For tilling the soil or for doing farming. In the farming, in the farm, in the field, the plow was used or important for the Harappans to do farming. Okay, for tilling the soil, to make the soil मैम upright. एक और पॉइंट है, लेकिन ये इन सिचुएशन है, अगर उनके सामने कोई अगर उनके सामने कोई एनिमल आ गया जो उन पर अटैक करना चाहता है, तो फिर वो, अगर उन पे वेपन्स ना हो तो फिर प्लस भी यूज कर सकते हैं अपने आप को डिफेंड करने। हाँ, ठीक है, अब इनको चारों को अलग अलग लिखना आपको, ताकि आप कोई मिस ना करें, कंफ्यूज ना हो। तो पहले मेटल्स को लिखना, फिर राइटिंग, फिर व्हील, फिर प्लाव। ओके, तो 4 पॉइंट्स में आप इनके बारे में लिखेंगे। डिस्कशन है, तो लेट्स डिस्कस। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टेराकोटा टॉयज, जो आपको इसमें दिखे वो आप लिख लेना। टेराकोटा टॉयज जो ये दिख रहे हैं ना आपको सारे, कौन से पेज नंबर पे हैं ये? इट इज ऑन पेज नंबर 35। 35 के अलावा भी ये देखो, ये दे रखा है ऑन पेज नंबर 38। 38 पे भी कुछ आपको, मैम वो एक वो टाइप का है, हो टाइप का है मैम, हो टाइप के, और मैम वो थोड़े से एनिमल्स हैं। हाँ, उनमें कौन से एनिमल्स को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उनकी पिक्चर देखिए, उन टॉयज को देखिए, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से अपना इसका नाम लिख देंगे कि वो कौन से एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, कौन से एनिमल हो सकते हैं एग्जैक्टली, हो सकता है मैं कुछ और इमेजिन कर रही हूँ, आप कुछ और इमेजिन कर रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है वो एनिमल को किससे रिजेंबल कर पा रहे हो आप, दैट यू हैव टू राइट डाउन। ओके, विच डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव एंजॉयड प्लेइंग विद द मोस्ट। अब इनमें से अगर आपको पूछा जाए कि उस समय के बच्चों को कौन सा खिलौना सबसे अच्छा लगता होगा, जिसके साथ वो बहुत ज्यादा खेलना पसंद करते हो, हट रही है बीच में। हाँ दिव्या, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, आपकी आवाज बीच में कट रही मेरी है आवाज नहीं आ रही? मैम, कट रही है बीच में। मैम आ रही है। वो एनिमल्स वाले से टॉय से ज्यादा खेलते होंगे। हाँ, तो कौन से एनिमल के टॉय से, विच एनिमल? मैम डॉग, टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, जिराफ।
लॉयन से खेलते होंगे पक्का, डरते नहीं होंगे दिव्य? मैम मैंने नहीं मैथ बने। यस मैंने बोला कि वो lion वगैरह तो थे। मैम वेदांश ने बोला था। मैंने नहीं बोला। ओके 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 गेट इट। मैम वो खिलौनों में टॉयज में कार्ड, छोटी सी कार्ड बना के भी उससे खेल सकते थे। हाँ बिल्कुल, कार्ड से खेलते होंगे, छोटी सी कार्ड बना के ना कार्ड से खेलते होंगे। मैम ऐसा ही होता हुआ कि जो आई थिंक दे वर्ड होता है उसके सर पर डाल के विद द कार्ड। ओके, आप जो आप हॉर्स इसमें देख सकते हो कि अगर इसमें आपको कार्ड दिख रहा है या कुछ और दिख रहा है, डॉग दिख रहा है, तो आप अपनी इच्छा से भी कह सकते हो, है ना। इसके लिए कोई ये माइनस और प्लस वाला नंबर का रीजन नहीं है, आप तो अपनी इच्छा से लिख सकते हो। आई थिंक सो। नेक्स्ट वन इज मेक अ लिस्ट ऑफ दैट ऑफ व्हाट द हरप्पन्स एट and put a tick mark against the things you eat today. ठीक है, हरप्पन, what was the food of हरप्पन? क्या क्या चीजें खाते थे? क्या वेजिटेबल्स खाते थे, फ्रूट्स खाते थे या फूड ग्रेन्स खाते थे? उन फूड ग्रेन्स में कौन से हैं? नाउ कम टू पेज नंबर 38. Food for the people in the cities. Now see, be very careful. Okay, it is all given in the book. While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and reared animals. ये हमने स्लाइड्स में भी देखा था. These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes and rulers in the cities. Just मैम वो लोग वीट, बार्ली, हाँ, पीस एंड राइस एंड सेज मैम वो करते थे, ग्रो करते थे। ये ग्रो करते थे उनके प्लांटेशन में, उनके ग्रो फील्ड्स में ये सब उगते थे। और होम डू दे प्रोवाइड, किसको प्रोवाइड करते थे ये? किसको पहुंचाते थे, किसके लिए ग्रो करते थे? मैम किंग्स एंड क्वींस। किंग, क्वींस, हु एल्स? मैम देयर फैमिली। See, these farmers and मैम क्राफ्ट पर्सन, yes, क्राफ्ट पर्सन एंड रूलर्स को पहुंचाते थे। हाँ ठीक है, क्योंकि क्राफ्ट पर्सन सारे कॉमन पीपल थे। स्क्राइब्स थोड़े से अच्छे थे क्योंकि वो राजा वगैरह के बारे में कुछ कुछ लिखते थे और सील्स वगैरह बनाते थे। एंड द रूलर्स हु बेसिकली डिसाइड अबाउट द सिटी, कि सिटी का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, कहाँ पे होगा, कैसे घर बनने, कहाँ कौन सा बनेगा, दैट दे यूज्ड टू टेक डिसीजन। ओके, हाँ, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब इसमें से आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो उसको टिक कर लेना। आपसे मतलब है कि आज की डेट में, आपसे मतलब आपसे नहीं है कि मैं क्या खाता हूँ, अंडरस्टूड। आपसे अगर पूछा जाए कि आप क्या खाते हैं, आप मतलब इन कॉमन, इन जनरल, आपका मतलब इन जनरल है कि आपके घर में क्या क्या खाया जाता है। ठीक, जैसे आज की डेट में वीट भी खाते हैं, बार्ली भी खाते हैं, पल्सेस, पीस, राइस, ठीक है, खाते हैं। Do you think that the life of farmers and herders who supplied food to the Harappans was different from that of the farmers and herders you read about in the chapter 3? हरप्पा में जो हमने फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में पढ़ा, उनकी लाइफ जो चैप्टर 3 में फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में पढ़ा उससे डिफरेंट थी। क्या ऐसा लगता है आपको? अच्छा, कौन बताएगा कि इसमें जो फार्मर्स, हरप्पन सिटी के जो फार्मर्स और हर्डर्स थे वो करते थे क्या, वो क्या करते थे? मैम सबको खाना प्रोवाइड करते थे। सबको खाना प्रोवाइड करते थे, और क्या करते होंगे? हाँ दिव्य? मैम वो जो खाना मैम दूसरे स्टेट में खाना बेचने जाते जब थे। उनको जरूरत होगी तब खा सकते थे। हाँ ठीक है। मैम दूसरे देशों में सब्जियां वब्जियां भेजने के लिए। दूसरे देशों में? मैम मतलब जो मैम उनके पास्ट वाले स्टेट रहते होंगे तो मैम उधर खाना देने के लिए में भेजते होंगे। मैम दूसरी सिटीज में खाना
दूसरे सिटीज में फूड प्रोवाइड करते थे, फूड सप्लाई करते थे। ओके फाइन। अब थर्ड चैप्टर में, जो इससे पहले वाला चैप्टर था कि जब अर्ली मैन ने यस मैम। हंटरी से अपनी लाइफ को चेंज किया and they became farmers and herders. Was their life same as Harappan? नो मैम। नो मैम, वो अपने घर के आसपास ही खेती करके खाते थे। वो लोग बस मैम वो खेती करके मैम केवल उनके जो साथी थे मैम वो उन्हीं के साथ फूड शेयर करते थे। और मैम जो ये हड़प्पन वाले थे मैम वो लोग मैम दूसरे रूलर्स एंड क्राफ्ट पर्सन को फूड प्रोवाइड करते थे। ये चैटिंग क्यों हो रही है बेटा? क्या हो गया मानव? मैम वो बोल रहा है कि मैम वो लीव हो के आ गया, तो मैम फिर भी उसको आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही बेटा? कहीं प्रॉब्लम आपके यहीं पे? मैम पावर ऑफ करके मोबाइल पे जाएगा तो आ मैम जाएगी। मैंने उससे बोला कि वीडियो देख लेना। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? उसको आप भी समझा सकते हो, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर उसको ऐसा लगता है मेरी आवाज अब भी नहीं जा रही है तो इंटीमेट कर देना कि कोई डाउट हो तो मुझसे डायरेक्टली क्लियर कर लेगा। ओके ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस था, क्योंकि जब हमने देखा कि हंटर और गैदरर जो थे, जो हंटिंग करते थे वही गैदरर्स भी थे, तो हंटर गैदरर्स ने जब अपना क्या एक तरीके से चेंज लाया अपने अंदर, जब चेंज लाया और दे बिकेम फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब वो क्या बन गए? फार्मर्स और हर्डर। पहले वो थे हंटर्स एंड गैदरर। ठीक है, अर्ली मैन हंटर गैदरर था, लेकिन जैसे जैसे उसने सेटलमेंट वाली लाइफ शुरू की, ही बिकेम द अर्ली मैन बिकेम व्हाट? फार्मर से फार्मर और हर्डर बन गया, पशुपालक। ठीक है, किसान और पशुपालक बन गया क्योंकि वो पशुपालन करता था। ठीक है, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में जिन हर्डर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, फार्मर्स के बारे में बात कर रहे हैं, देयर लाइफ वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दीज हर्डर्स एंड फार्मर्स। क्यों डिफरेंट था? जैसा कि अभी आप लोगों ने क्लियर किया कि इन हड़प्पन सिविलाइजेशन दीज पीपल दे यूज्ड टू सप्लाई फूड टू ऑल द पीपल लिविंग इन द सिटी, whereas in the third chapter the herders and the farmers, they used to grow food for themselves. They started settling their life, अपनी लाइफ को सेटल करने लगे। अभी इस तरीके से कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े रूलर्स या कोई नहीं आया था कि इनको सप्लायर के रूप में काम करना पड़ा या प्रोवाइडर बने। दे ग्रू फूड फॉर देम ओनली, फॉर देयर ओन। हाँ मैम, वो अपने घर के मतलब आस पास ही फील्ड बना के हाँ, खाते थे। आस पास ही फील्ड बना के करते थे, है ना? जो जहाँ पे सेटल हुआ उसने वही खेती। यस मैम। है ना? जबकि इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि सच पीपल दे यूज्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी, कंट्री साइड में रहते थे, बाहर की तरफ रहते थे, जो सिटी के बाहर खाली जगह थी वहां पे रहा करते थे, सो दैट दे कुड एबल टू ग्रो फूड। ओके, तो ये डिफरेंस था। गिव 3 रीजंस। आपने ऐसा क्यों सोचा? व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट यू हैव टू राइट? डिस्क्राइब 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन योर सिटी और विलेज। अब आपके आसपास अगर विलेजेस हैं या फिर कोई आपने बिल्डिंग्स देखी है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, लाइक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो सिटी में रह रहे हैं, सपोज अगर कोई मुंबई में रह रहा है तो वो बोल सकता है कि मैंने ये देखा है। क्या देखा है? गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये देखा है, और चर्च देखे हैं। अगर आप राघवगढ़ में रह रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मैंने इम्पोर्टेंट बिल्डिंग किला देखा है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई सिटी में ऐसी जगह पे रह रहे, सपोज भोपाल में रह रहा है तो बोलेगा कि मैंने ये विधानसभा का वो जो हाउस है वो देखा है। कोई दिल्ली में रह रहा है तो बोल रहा है कि राष्ट्रपति भवन देखा है, पार्लियामेंट हाउस देखा है, लोटस टेम्पल देखा है। such type of buildings, about such type of buildings which are very important। ओके, ऐसी किसी बिल्डिंग के बारे में यदि आपके आसपास आपको जानकारी है कि ये बिल्डिंग मेरे आसपास है एंड इट इज यूजफुल फॉर दिस पर्पस, यू कैन राइट डाउन। ओके, यस व्हाट आर मैम। द एक्टिविटीज टू दैट मैम ये वाला आएगा क्या पेपर में? आ भी सकता है। ये 21 नाउ सी, आपका तो कौन से चैप्टर आएंगे पेपर में? अगर आपको याद हो तो
तो आपका पेपर आपकी बुक के चैप्टर से उठाकर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया गया था, बल्कि आप कितना समझे वो क्वेश्चन थे। यस मैम। ठीक मैम है। जो क्लास में डिस्कस किए थे। हाँ ठीक है, जैसे अब हमने ये सब पढ़ लिया, हमको जानकारी है, बट जैसा ये थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एपिस्टेमिक लर्निंग। एपिस्टेमिक लर्निंग मतलब उससे जो कुछ भी आपको समझ में आए वो। मेटल्स के बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं दिया, पर आपको समझ में आ गया कि मेटल्स का यूज क्यों हो सकता है, क्या कर सकते हैं ऑर्नामेंट और शील्ड बनाने के काम में, सोर्स बनाने के काम में, कुछ और इम्प्लीमेंट्स बनाने के काम में, कुछ सुंदर वेसल्स बनाने के काम में। तो ये हमारी तरफ से हम ऐड करते हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं, तो हमको पढ़ना नहीं है, सोचना भी है। हमेशा ध्यान रखिए कि हिस्ट्री में हमको बस ये पाना है कि जहाँ पे भी हमें कोई प्रूफ मिला है, एविडेंस मिला है, हिस्ट्री इज रिटेन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। हिस्ट्री कोई कल्पना नहीं है, इट इज नॉट mere what to say कल्पना, इमेजिनेशन। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस। जब एविडेंस मिला है तब हिस्ट्री बनी है, जबकि एविडेंस हमारे पास नहीं है, जब हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, देयर इज नो हिस्ट्री अबाउट इट। जहां से हमको एविडेंस मिलना शुरू हुए हैं, हमने वहीं से हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि हिस्ट्री तभी लिखी गई है। ओके, तो इसको बहुत ध्यान से रखना है, समझना है मतलब। और रीजंस वही रहते हैं जनरली जो आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ा, ऐसे रीजंस आपको आराम से, अगर आपको नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है तो आपको समझ में इतना आ जाना चाहिए कि कभी भी कोई चीज कैसे होगी, या तो नेचुरल कैलामिटी होगी, किसी भी चीज के डाउनफॉल का कारण क्या होगा, सूखा पड़ा होगा, बाढ़ आ गई होगी, या कोई अटैक हुआ होगा। ये मेन रीजंस है, ये हर जगह लगभग ऐसे ही रहते हैं। क्योंकि कोई भी चीज जो शुरू हो चुकी है, जो बहुत ग्रैंड है, जो बहुत बड़ी है, जो बहुत वास्ट एरिया में फैली हुई, एकदम से खत्म कैसे हो सकती है? खत्म होने के लिए कुछ ऐसा रीजन चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए जो कि उनको खत्म कर सके। वो है नेचुरल कैलामिटी या अटैक। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज होंगी तो कोई भी एकदम से कोई बीमारी फैल गई, सब मर गए। एकदम से सूखा पड़ गया, सब मर गए। एकदम से कोई अटैक कर दिया किसी राजा ने जो बहुत स्ट्रांग था, सब चले गए। ऐसी चीजें होती हैं, ये बेसिक जो चीजें हैं ये लगभग कॉमन रहती है, लगभग कॉमन रहती है। तो वी नीड टू नो दिस, इस पे हमको सोचना पड़ेगा। जहाँ कोई रीजन नहीं है तो हम इमेजिन करके इस रीजन तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज वी हैव लर्न हिस्ट्री, वी नो हिस्ट्री। Next is, are there any old buildings in your locality? Find out how old they are and who looks after them. आपकी लोकेलिटी में, आपके एरिया में कोई बिल्डिंग है तो आप उसके बारे में लिखिए कि कौन रहता है, कौन देखता है, किस लिए, कब की बनी है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन। सेवंथ क्वेश्चन जो है, कोई भी 3 बिल्डिंग्स के बारे में आपको लिखना है। आप ग्वालियर फोर्ट लिख सकते हो, आप राघवगढ़ फोर्ट लिख सकते हो, आप ताजमहल लिख सकते हो, एनीथिंग, कोई भी। मैम आउटसाइड कंट्री में लिख आउटसाइड अपनी कंट्री के बारे में लिखना, आउटसाइड कंट्री मत जाना। ठीक है, यस मैम। हाँ ठीक है, दिस इज योर चैप्टर। इसके कुछ एक क्वेश्चन हमने उस दिन भी देखे थे। ठीक है, यस मैम। मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन भेजे थे ना मैंने, स्लाइड्स में दिखाए थे। आप चाहोगे तो और फिर से लिख के भेज दूंगी मैं। ठीक है, मैम नहीं भेजे आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन? हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वही 4-5 हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मतलब सिर्फ यह है कि आपको नॉलेज हो, आप समझें, इसको लिखें। ठीक है, अब आज क्या करना है आपको, अपने लिए एक डिसाइड करके मुझे भेज देना। पहले डिसाइड कर लेना और फिर भेज देना, बनाकर मत भेजना पहले, क्योंकि ये 2 बच्चों ने मैप्स बनाया हुआ है, तो मैप्स में इन्होंने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं मेरे ख्याल से हो मैम जाएगा। प्रेजेंटेशन में आने की जरूरत नहीं है, आपको साइड करके भेजना है। है ना, तो आप मुझे बता दोगे ना मैम कि हाँ मैम अभी कर सकते हैं क्या प्रेजेंटेशन? बेटा, मैम टाइम हम हो सेंड कर सकते हैं आपको। टाइम हो गया, टाइम हो गया। मैम सेंड करना है आपको या फिर दिखाना ही है? नहीं, मुझे नाम तो लिख कर भेजो ना कि आपने क्या डिसाइड किया है। जैसे इन ओके 2 मैम। बच्चों का तो मुझे पता है, और भी 2-3 ने भेजा हुआ है।
ठीक है, तो उनका पता है तो मैं कहीं नोट डाउन कर लूंगी कि हाँ इन बच्चों का ये है, तो एटलीस्ट कम से कम एक चैप्टर के लिए 10 बच्चे ना हो जाए। नया चैप्टर भी आप ले सकते हो, वो आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, एडवेंचरस रहेगा, जो मैंने नहीं पढ़ा है, क्योंकि उसमें आपको खुद से सोच कर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो रिपीटिशन ज्यादा नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे हम बहुत सारा अपना चैप्टर भी कवर कर पाएंगे, अपना सिलेबस भी कवर कर लेंगे बेटा। यस मैम। ठीक है, इसलिए चले लेट अस डू शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम बेटा। मैडम, मैडम